stranded and shamed. This is the story of how India's top pole vaulters were treated like offenders on a train. National record holder Dev Meena and international athlete Kuldeep Yadav were forced to deboard at Panvel station for travelling. In fact, it was not about a ticket issue, but for carrying the very equipment that their sports demanded. They were not allowed to take their poles. The athletes were returning after completing at the just after finishing the game at the All India Inter-University Championships, when a travelling ticket examiner stopped them, refused to listen to them, insisted that the poles will not be allowed inside the train. A video of that incident has now gone viral, with Dev Meena describing hours of harassment, repeated threats of fines and extra money charged by calling the equipment as overweight. Dev Meena says this is not an isolated case. He says athletes face humiliation every single time that they travel. This is a situation they have to come across where they're either harassed for the baggage that they're carrying or just not given good quality seats. A lot of times we've seen how they're made to sit on the ground, on the floor of the train, near the bathroom. Now, despite explaining that the poles are essential sporting equipment, the TTE allegedly showed no flexibility and did not allow them to carry it with them. They were in fact forced to get off the train or pay up. Kuldeep Yadav echoed the charge, calling the treatment as unfair and humiliating. Their coach, Ghansham, says repeated requests fell on deaf ears and heavy fines were imposed without justification. The athletes ask a simple question: if national and international players can be treated this way, what hope do junior athletes really have? The incident has now sparked huge outrage across social media and the sports fraternity. Madhya Pradesh Sports Minister Vishwas Sarang has taken cognizance of this, saying that the matter will be taken up with the Sports Ministry, demanding accountability and a clear system so athletes are not harassed for carrying sports equipment. Now, this incident raises serious questions about how India treats its sports persons. In fact, we know our sports persons in the country are precious. We celebrate them. They are celebrated on podiums like these. But when it comes to public platforms like transport, as basic, they're humiliated and how? They're stranded, shamed, silenced. Thankfully, this video is out to expose what happened. कंपटीशन खेल के मैंगलोर से पनवल मतलब भोपाल आ रहे थे और पनवल से हमारी ट्रेन चेंज थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने सामान नीचे रख के ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए सर जैसे आ रहे थे तो टीटी वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने वो सामान को देखा और उन्होंने कहा कि ये सामान कैसा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो हमने उनको बताया ये स्पोर्ट्स का सामान है। फिर जीआरपीएफ वालों को बुलवा के उन्होंने हमारे प्लेयर हमारे समझाने की कोशिश कर रहे थे तो बदतमीजी करने लगे। फिर मैं आया, फिर हमने स्टेशन मास्टर से हाथ जोड़ा और मैंने उनसे कहा कि सर ये खेल का सामान है, आप बताइए किससे बात करनी है, मैं बात कर लूँगा उनसे जिनसे बात करना। तो बोले ऊपर से आदेश आया है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हमने वहाँ के रेलवे स्पोर्ट अफसर जो है मैंने उनसे भी फ़ोन करके बात करवाया। उन्होंने समझाया तो बोले कि ठीक है देखते हैं। और जो रेलवे स्पोर्ट्स अफसर की बीवी हैं वो पोल वॉल्टर रही हैं नेशनल से, वो भी रेलवे में हैं। उनको भी मैंने बोला कि आप बात करिए मैम। उन्होंने बात किया लेकिन वो बिना चार्ज लिए हमको वहाँ से आने नहीं दिए। सर यही मैं अपने पोल्स कैरी करके सर मैंगलोर से भोपाल आ रहा था तो पनवेल रेलवे स्टेशन पे हमारा ट्रेन चेंज होनी थी वहाँ से। तो हमने अपना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाहर निकाल के रखे थे पोल्स ताकि दूसरी ट्रेन में डाल सकें। लेकिन वहाँ की जो टीटी सर उन्होंने देख लिया था और बोल रहे थे कि इसका चार्ज लगेगा, आप इसको लेके कैसे ट्रेवल कर रहे हो। तो हमने उनको बहुत कन्विंस किया लेकिन सर वो बात नहीं मान रहे थे और बहुत बदतमीजी कर रहे थे। तो हमने उनका वीडियो शूट किया सर ताकि हम दिखा सके लोगों को कि ऐसी सिचुएशन हमको हर बार फेस करनी पड़ती है। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ ताकि कोई हमारी हेल्प करे इस चीज़ को लेकर कि इसका या फिर कुछ लेटर इशू हो जाए ताकि हम आगे ट्रैवल करें तो कोई दिक्कत ना आए। All right, let me quickly bring in Dev Meena himself, who's a national sports person, and he joins us live to give us a little more on what really happened with him directly, and he speaks in Hindi. Dev Meena ji, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं नबीला हूँ। आप बोल सकते हो कि क्या हुआ है? आपके साथ जो वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपके जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है, जो पोल्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, उनको अंदर लेने नहीं दे रहे थे। आपको मतलब एक्स्ट्रा फाइन देने के लिए बोला गया।
और फिर बोला कि या तो पैसे दो या तो आप ट्रेन से निकलो। क्या हुआ था? क्या आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर था कि हम स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, हम ये हमारा स्पोर्ट इक्विपमेंट है, दिखाया था उनको? थैंक यू सो मच मैम। मैम हम पनवेल रेलवे स्टेशन पे हम हमारी वहाँ से ट्रेन चेंज होने वाली थी, तो हमने अपने इक्विपमेंट बाहर निकाल के रखे थे ताकि हम दूसरी ट्रेन में रख सकें उनको। लेकिन वहाँ के जो टीटी थे वो आ गए थे और उन्होंने बदतमीजी की थी, और हमारे जो सर हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। और जो भी सर मैम लड़ाई हुई है वो इसको लेकर हुई है कि आप ये पोल नहीं लेके जा सकते हो अंदर, इसका आपको फाइन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और वो फाइन लीगल भी नहीं था मैम, क्योंकि वो 80 केजी वेट डाल रहे थे उसमें। 80 केजी वेट होता ही नहीं मैम पोल का। मैम वो 2 केजी का पोल आता है, उसमें आप 80 केजी कैसे लिख रहे हो? वो गलत फाइन भी बना रहे थे ऊपर से, और फिर बदतमीजी कर रहे थे। और ये हर बार का है मैम, हर बार एथलीट को ये चीजें फेस करना पड़ता है। तो मैम ये तो गलत है ना इस अब आप बोल रहे हो कि हर बार होता है, हर बार कैसे होता है? या तो आप स्पोर्ट अथॉरिटीज़ जो आपके ऑफिशियल्स है, जो स्पोर्टिंग बॉडी है, एसोसिएशन है आपके स्पोर्ट का, वो आपको मदद नहीं करते हैं? मैम करते हैं, लेकिन मैम ये तो मैम रेलवे के ऊपर है ना मैम, रेलवे अधिकारियों के ऊपर है कि ये चीज इनको सपोर्ट करना चाहिए मैम। जी, बाकी तो सर मैम तो जैसे आप सरकार के तरफ से कोई लेटर दिखा नहीं रहे हो आप? मैम हमने उनको लेटर दिखाया था, एक हमारे मैम डायरेक्टर सर का एक लेटर था, लेकिन वो उसको देख के वो मान नहीं रहा था मैम। वो बोल रहे थे कि आपको फाइन भरना पड़ेगा। हमने उनको एक लेटर दिखाया था, हाँ, लेकिन वो बोले थे वो हमको लेटर ऊपर का से ऑर्डर। किसने किसने लेटर दिया है वो? मैम मैम वो हमारे घनश्याम सर कोच जो है ना मैम, उन्होंने बनवाया था मैम। हमारे जो स्पोर्ट डायरेक्टर है ना मैम भोपाल के, टीटनगर स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स डायरेक्टर है मैम, उनसे बनवाया था मैम वो लेटर हमने। और वही लेटर हमने उनको दिखाया था, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे थे मैम। मतलब ये आपके स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूव्ड जी मैम। लेटर था? यस मैम, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूव लेटर था मैम। स्टैम्प सिग्नेचर सब था? मैम सिग्नेचर था उसमें मैम। जी मैम। स्टैम्प नहीं था? नहीं स्टैम्प नहीं था मैम, सिग्नेचर था मैम उनका, लेटर लेकिन वो हेड फिर नहीं था? आपके स्टेट गवर्नमेंट का लेटर हेड नहीं था? मैम लेटर हेड था मैम। लेटर हेड में था? यस मैम। तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट सी अ प्रॉब्लम हियर। वो मतलब जानबूझ के आपको परेशान कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है। यस मैम, जानबूझ के परेशान कर रहे थे मैम। पहले तो उन्होंने बोला था 8,000 रुपये लगेगा इसका चार्ज, लेकिन फिर वो एकदम से मैम 2,000 पे आ गए। बोले 2,000 दो और आप और जाओ। लेकिन उन्होंने उसमें वेट उसमें मैम बस 2 केजी का वेट आता है, लेकिन उन्होंने मैम उसमें 80 केजी लिख रखा है वेट। वो उसके उसके चलते चलते मैम हमारी एक ट्रेन मिस हो गई। फिर उसके बाद हमने शाम को ट्रेन करी मैम, शाम को ट्रेन फिर 7 बजे फिर मैम वहां से निकले हम। तो पूरा दिन खराब हो गया तो उसके पैसे चक्कर दिए में। और अंत में या क्या क्या जी हुआ? मैम पैसे दिए थे मैम, फिर कितना दो दिए? हजार लास्ट में 2,000 रुपये दिए थे मैम फिर उनको हमने। आपके पॉकेट से दिया? नहीं नहीं मैम, कोच सर ने दिए मैम। हाँ मैम, हमारे पॉकेट से गया था मैम वो तो। तो वो आपको रीइंबर्स करेंगे आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट? यस मैम, वो रिइम्बर्स हो जाएगा मैम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की आपके लिए तरफ। 2000 कितना बड़ा है? मैम मेरे लिए ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैम मेरे लिए बस ये बड़ा है कि मैम हर बार अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो मैम मेरे जो जूनियर एथलीट है ना मैम, उनको तो ज्यादा दिक्कत आती है ना मैम। जिनके पास पैसे नहीं है मैम, जो एथलीट गरीब घर से मैम, उनको लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि हर एथलीट को थोड़ा सा इस चीज को मतलब एक हर बार फेस ना रेस्पेक्ट, करना पड़े। हाँ। 2,000 रुपए या 2 रुपए, अगर आपका मतलब इंसल्ट किया जाए ऐसे जब आप देश के लिए खेलते हो, तो ये जी तो मैम। एक एब्सोल्यूट डिसरिस्पेक्ट हुआ। यस मैम, बिल्कुल। इसलिए मैम मैं इंडिया को मैम 6 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ मैम। जूनियर एशिया में मेरा मेडल है मैम। लेकिन फिर भी मैम हमने उनको सारी चीजें बताई, लेकिन फिर भी वो जो टीटी थे मैम वो समझ ही नहीं पा रहे थे मैम। वो सीनियर टीटी थे पूरे, मतलब हेड थे उनके, फिर भी वो ऐसे बात कर रहे थे। ये तो गलत है। क्या बोल रहे थे वो अगर जब जब आपने बोला कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, तो बोल हाँ क्या रहे बोले, थे वो? वो आप कोई भी हो लेकिन आपको इसको यहीं पे जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते, या फिर आप फाइन भरो तो जाओगे। मैम ऐसा बोल तो रहे जब थे। आपने बोला कि ये 2 केजी का है, आप 80 केजीज लिख रहे हो, ये तो गलत हुआ, ये इलीगल हुआ। इनको इनको मैम ये फाइन वही तो, इनको फाइन करना चाहिए। उनको फाइन करना चाहिए था। लेकिन फिर हमारी मैम ट्रेन आने वाली थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में एक वीडियो शूट किया और फिर हम वहां से निकल गए थे मैम। तो वो उनको पता था कि आप वीडियो शूट कर रहे थे? नहीं मैम, एक बार तो उनको पता चल गया था, तो उन्होंने हमारा फोन लेके वापस ना वीडियो डिलीट कर दिया था मैम। लेकिन हमने चुपके से एक दूसरे फोन में वीडियो बना लिया था मैम, वही डाल दिया मैम हमने। हाँ। तो कोई जी अभी इंफॉर्मेशन आया है कि इनको अगर सस्पेंड किया गया है या तो इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है कुछ?
कुछ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम अभी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है? जी मैम, अभी कुछ नहीं। What a shame. Well, this is precisely the plight of sportspersons in our country. You have zero facilities that they get, despite having a state government approved letter that their equipment needs to pass through when they are traveling. They always have to face this situation, and it's just sad. It's terribly tragic. आप क्या कहना चाहते हो? आपने देश को 6 बार represent किया है. आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? मैम बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैम, इसके लिए कुछ एक रूल हो जाए, रूल बन जाए, ताकि अब बाद में आगे ये चीज फेस ना करना पड़े, या फिर कुछ कुछ सरकार कुछ नया रूल लागू कर दे एथलीट्स के लिए, ताकि ये चीज बार बार फेस ना करना पड़े। आप कितने लोग थे और कितने लोगों के पास पोल थी? सिर्फ आप अकेले के पास थी या आपके कोलीग्स के पास भी था? नहीं मैम, हम पूरे 8 लोग की टीम थी मैम। कोच सर को मिला के हम 8 लोग थे मैम। 7 प्लेयर थे, कोच था मैम। ओके, सबके पास एक पोल था? सबके मैम टोटल हम 10 पोल कैरी कर रहे थे मैम। एक पोल का प्राइस है 2 लाख रुपए मैम, तो हम 20 लाख के पोल कैरी करके जा रहे थे वहां से। जी। तो ये पूरा मिला के 10 पोल को मिला के 2000 का उन्होंने आपके हाथ से फाइन लिया है। जी। और उनको दिखाई नहीं दिया कि आप देश के लिए खेलते हो, कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो? नहीं मैम, हमने बहुत सारी चीजें उनको बताई मैम। हम 6 घंटे उनको कन्विंस ही कर रहे थे मैम के सर, क्योंकि पहले वो 8,000 पे देना मैम, फिर उन्होंने लास्ट में एंड में बोला कि 2,000 दो, फिर आप जाओ। What a tragedy. Well, जब क्रिकेट मैचेस सब होता है तो हमारे टीम इंडिया को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बेसिकली एसोसिएशन हैंडल कर लेती है। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट में जो अथॉरिटीज़ है वो उनको सारा फ्री नहीं देती है, उनका भी एक लिमिट होता है, मगर उनका लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 100, 150, 200 kgs तक लिमिट होता है उनके लिए। बस मैम, एयरपोर्ट पे तो मैम बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मैम। एयरपोर्ट में कुछ कॉम्पिटिशन्स में तो अपने पोल भी नहीं ले जा पाया मैम मैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, वो भी एयरलाइंस की वजह से, क्योंकि एयरलाइंस ने मना कर दिया कि पोल नहीं जा पाएंगे। इस वजह से मैम मैं फिर दूसरों के पोल बोरो करने पड़े मुझे। जो मेरे बाहर दूसरी कंट्रीज के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे पोल दिए कि आप मेरे पोल से खेलो। फिर उसके बाद में फिर मैंने उनके पोल से खेला मैम, क्योंकि यही बस ट्रेवलिंग का ही दिक्कत है मैम। इंडिया में ट्रेन से ट्रेवल करो तो दिक्कत है, बाहर जाओ तो फ्लाइट से करो ट्रेवल तो उसमें दिक्कत है। दूसरी कंट्रीज के पोल वोल्टर्स आते हैं मैम, वो अपने पोल्स कैरी करके आते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता है, वो सारी जगहों पे ट्रेवल करते हैं। लेकिन इंडिया से जब अगर कोई बाहर जाता है पोल लेकर तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आपके पोल नहीं जाएंगे। दूसरी कंट्रीज भी तो ला रही है मैम पोल, तो हमको भी ले जाना चाहिए ना मैम। इस हिसाब से तो हक अपने को भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी मीना जी, आपका अगला गेम कब है और कहाँ है? मैम अगला तो मैम एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं मैम। 545 उसका क्वालिफिकेशन है, मैं 540 कर रहा हूँ अभी। तो एशियन गेम्स जापान में मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैम। ओके, तो आप ये चाहते हो कि रूल्स बदले, आपके लिए थोड़ा रिलैक्स्ड हो, जब पोल लेना हो एक लेटर काफ़ी होना चाहिए, और बेसिकली ये टीटी ऑफिसर्स या एयरपोर्ट्स में इनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उनके इक्विपमेंट को। और ये इक्विपमेंट जो होता है ये सब आप अपने खुद के पैसे से मंगाते हो या एसोसिएशन लेके देती है? ये कैसा होता है? नहीं मैम, मैं स्टेट गवर्नमेंट की स्टेडियम है हमारा, टीटी नगर स्टेडियम है भोपाल में, तो वो हमको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। कोच प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, डाइट, रहना खाना सभी इनका मैम, पूरी फैसिलिटी यहाँ पे। ओके okay, chalo, we're keeping our fingers crossed. Hopefully they watch us and watch this interview and take note of it. Dev Meena has represented India nearly 6 times. He's a national record holder in what he does. Men's pole vault. Pole vault. Yes ma'am. Yeah. So you've held a national record? Yes ma'am. Yes. So he's represented India 6 times, and that really should that should give him enough credibility to at least pass through a train journey without being harassed.